کیا حکومت آج اہم آئینی ترمیم ایوان میں پیش کرے گی؟ کیا حکومت نے نمبرز پورے کر لیے؟ شہر اقتدار میں افواہوں اور چیم و گوئیوں کا بازار گرم۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومتی ارکان کے متضاد بیانات اور دعوے۔ کیا حکومت آئینی ترمیم لا رہی ہے؟ وزیر قانون سے صحافی کا سوال۔ اعظم نذیر تارڑ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہم ترین اجلاس آج ہوں گے۔ آئینی ترمیم پیش کیے جانے کا امکان، اجلاسوں میں حاضری یقینی بنائی جائے۔ حکومت کا اتحادی ارکان و قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو پیغام۔ سینیٹر اسحاق ڈار کے چیمبر سے سینیٹرز کو مطلع کیا گیا، حکومت کی جانب سے تاحال اتحادی ارکان کو قانون سازی کی نوعیت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ اہم حلقوں کے JGI فے کے ارکان نے پارلیمنٹ سے بھی رابطے ہوئے۔ سینٹ اجلاس کا 5، قومی اسمبلی کا 6 نکاتی ایجنڈا جاری۔ کوئی قانون سازی ایجنڈے کا حصہ نہیں۔ نمبر گیم پوری ہونے پر سپلیمنٹری ایجنڈے کے طور پر آئینی ترمیم بل ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمانی ذرائع۔ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے ہیں، بیرسٹر عقیل کا دعویٰ۔ آئینی ترمیم آج یا کل ایوان میں پیش کر دی جائے گی۔ آئینی ترمیم کسی شخص یا فرد واحد کے لیے نہیں ہے۔ تمام ججز کی ملازمت کی مدت میں اضافہ ہوگا۔ ججز کی ملازمت کی مدت میں توسیع ہوئی تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ جوڈیشل اصلاحات سے متعلق مثبت سوچ کے ساتھ حکومت کام کر رہی ہے۔ 3-4 آپشن حتمی شکل میں ہیں۔ کون سے آپشن متعارف کروانے ہیں یا فائنل نہیں کیا؟ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا نجی TV کو انٹرویو۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہو سکتا۔ ججز سے متعلق ترمیم جیسے معاملے پر اتفاق رائے کسی بھی پارلیمنٹ کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ آئینی ترمیم کی صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں۔ عدلیہ میں تعیناتی کا جو عمل ہے وہ آف دی جوڈیشری، فار دی جوڈیشری، بائی دا جوڈیشری ہے۔ اس عمل میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ مولانا کمیٹی میں شریک ہیں، تجاویز دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ کوئی آئینی ترمیم کرنی ہے یا نہیں؟ چاہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کو پھر سے تقویت دیں۔ مثبت طریقے کے ساتھ مثبت سیاست کرنا چاہتا ہوں۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے حق میں نہیں۔ اگر حالات ناگزیر ہو جائیں تو گورنر راج لگانا پڑے تو لگا سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ گنڈا پور افغانستان جا کر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، صحافی کا سوال۔ گنڈا پور افغانستان جائیں اور افغانستان انہیں رکھ لے، بلاول بھٹو کا جواب۔ مولانا فضل الرحمان کا آئینی اصلاحات کے لیے مشروط آمادگی کا اندیا۔ کیا JGI آئینی ترمیم یا عدلیہ کے حوالے سے ووٹ کرے گی؟ صحافی کا سوال۔ اصلاحات کے حوالے سے ہماری تجاویز کے مطابق کوئی چیز آئی تو غور کریں گے، مولانا فضل الرحمان کا جواب۔ JGI سربراہ نے عالمین گنڈا پور کے افغانستان سے بات چیت کے بیان کو جذباتی قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسے حالات ہیں؟ صحافی کا سوال۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے حالات نہیں ہیں، تاہم خیبر پختونخوا میں امن و امان کے حالات اچھے بھی نہیں ہیں، مولانا کا جواب۔ حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت نہیں۔ حکومت عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے پارلیمانی روایات کو پیروں تھلے روند رہی ہے۔ حکومت تاریخ کی بدترین آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے۔ حکومت اپنے اتحادیوں سے بھی ترمیم کا مسودہ چھپا رہی ہے۔ ہمارے ارکان کو اغوا کر کے اور دباؤ میں لا کر 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جعلی ترمیم اور عدلیہ پر حملے کے خلاف پارلیمان اور عوام دونوں میں بھرپور مزاحمت کریں گے۔ PTI اسد کیسر کا متوقع جوڈیشل پیکج پر رد عمل۔ حکومت پٹارے سے کیا نکالتی ہے ہم دیکھ لیں گے۔ بیرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ ترمیم ہوگی تو ووٹ نہیں دیں گے، ہمارا کوئی ایک رکن نہیں ٹوٹا، ہماری پارلیمانی پارٹی ایک جگہ یکجا ہے۔ اگر کسی نے سیاسی خودکشی کرنی ہے تو وہ بات ہے۔ کوئی آئینی اصلاحات نہیں ہو رہی، یہ سب بددیانتی ہے۔ فارم 47 کی پیداوار حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ مکمل نہیں ہے۔ مخصوص نشستیں بھی ہمیں نہیں دی گئیں۔ سردار لطیف کھوسا کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وذ سمر عباس میں گفتگو۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا 5 گھنٹے طویل اجلاس۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کے رولز کا جائزہ۔ ہائی کورٹس میں خالیہ اسامیوں پر تقرریوں کا بھی جائزہ۔ جسٹس منیب اختر اور اٹارنی جنرل کے درمیان ہم مکالمہ۔ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا۔
मुजवजा आईनी तरमीम बारे बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तफसार इस साल का सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का जवाब। अटॉर्नी जनरल के जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मेंबरान को जुडिशल कमीशन रूल्स बारे ब्रीफ किया। रूल्स ड्राफ्ट पर तमाम मेंबरान की राय लेगी। तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट में कुछ तब्दीलियों पर इत्तफाक राय हुआ। यकीनी बनाया गया ड्राफ्ट रूल्स आइन से मुताबिकत रखते हैं। नया ड्राफ्ट आइंदा इजलास में मेंबरान के सामने पेश किया जाएगा। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 28 सितंबर को होगा। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई का अलामिया जारी। पाकिस्तान उस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पर हालात को बदलने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान की जो ज़रूरी अनाज की जो एक्सपोर्ट्स थी वो भी एक बहुत ही हौसला अफजा उसमें इजाफा है। हमारा जो पॉलिसी रेट है वो 200 पॉइंट से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमी आई। महंगाई की शरह है वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। 32% पे थी, वो आज 9.6% पे है। ये वो सिग्नल्स हैं जिससे कि पता चलता है कि हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ाएगा। पाकिस्तान इस मोड़ पर है जहां हालात को बदलने का वक्त आ चुका। मुआशी आशारियों से पता चलता है कि समत दुरुस्त है। पॉलिसी रेट में कमी सनतकारों और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ है। वक्त के साथ पॉलिसी रेट में मजीद कमी आएगी। महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल 32% थी जो अब 9.6% पर है। तरसीलात ज़र में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। IT के शोबे की तरक्की के लिए कोशा है। IMF अहदाफ पूरा करने के लिए टैक्स दायराकार को वसी किया गया। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ पड़ा जिसका एहसास है। किसी एक शोबे पर टैक्स का बोझ डालने से मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने IMF प्रोग्राम के लिए अपना हिस्सा डाला। दोस्त मुल्कों के ताउन से IMF प्रोग्राम का हुसूल मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ इसाक डार ने IMF प्रोग्राम में किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून के यंग पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात में गुफ्तगू। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। पाक फौज, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेंगी। इलाके में अमन को बरकरार रखने में मुकामी आबादी का मुस्बत किरदार ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का और कज़ाई का दौरा। वादिय तीरा में कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ बातचीत भी की। बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरात के खिलाफ मौसर जवाब देने की तैयारी को सराहा। आर्मी चीफ का कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदादकार में इजाफे की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म करने के अज़्म का अदा। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए मुकामी आबादी की हिमायत को भी सराहा। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, इंसादी दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल आसिम मुनीर की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। ISPR। हुकूमत और रियासती अदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्जाम। बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बानी PTI के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट पर तहकीकात का आगाज। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी PTI से तहकीकात के लिए अडयाला जेल आमद। बानी PTI का साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार। वकला की मौजूदगी में ही किसी तफ्तीश में शामिल होंगे। बानी PTI का जवाब। 4 रुकनी टीम अडयाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। इनकार के बाद वापस लौट गई। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज फिर बानी PTI से तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। इंतहाई मुतनाज़ा पोस्ट बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेयर की गई थी। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों का यमीन गंडापुर के सहाफ़ियों बारे नाज़ेबा अल्फाज पर एहतजाज। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। सहाफ़ियों ने PTI रहनुमाओं के सामने से माइक उठाकर नीचे रख लिए। सहाफ़ियों बारे जो भी बात हुई गलत हुई। अलीमीन गंडापुर का सहाफ़ियों बारे बयान हमारी पार्टी का मौक़िफ़ नहीं। बानी PTI ने कहा कि अलीमीन गंडापुर को सहाफ़ियों बारे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर ने भी अलीमीन गंडापुर के बयान की मज़म्मत की। सलमान अकरम राजा।
स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने दरख्वास्त मिलने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुशावरत की। मुशावरत के बाद स्पीकर ने PTI के गिरफ्तार अरकान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पार्लियामेंट लॉजिस को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं ने प्रोटेक्शन ऑर्डर के जरिए कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की सब ने मजम्मत की। ऐवान कमज़ोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा। माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो इस पर माजरत कर लें। अपोजिशन ने कमेटी को अपने बयानिए के लिए इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर को कोहसार में बैठे रहे, बताएं वहाँ क्या करने गए थे। हाथ जोड़कर कहता हूँ गंडापुर 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP को निशाने पर ले लिया। ख्वाजा आसिफ का कमेटी के इजलास में शिरकत करने से इनकार। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। जरूर एहतिजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं। जो वजीर आजम है, पिछली 1.5 साल की हुकूमत में भी वजीर आजम था, उसकी बेटियां अदालतों में जाती रही हैं, इन्होंने उनके ऊपर मुकदमे बनाए। क्या ये सियासत है? ये तो जाती दुश्मनी है। हमने किसी को कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI जलसे पर गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत का तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं को जुडिशल करने का हुक्म। पार्लियामेंट तमाम अदारों की माँ है। मुल्क के हालात देखें, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक? दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, यह इस्लामाबाद पुलिस है, यहाँ रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब उनसे क्या बरामद करना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शुएब शाहीन ने डंडा और शेर अफजल मरवत ने पिस्तौल बरामद हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल आई कमरा अदालत में कह के। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ। जुल्फी बुखारी की जायदादें कर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने रहनुमा PTI की जायदादें कर्क करने का फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जुल्फी बुखारी का 30 केनाल का प्लॉट बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म। इस्लामाबाद का दूसरा 4 केनाल का प्लॉट भी बहक़ सरकार जब्त करने का हुक्म कर दिया। जुल्फी बुखारी की अटक में 91 केनाल 10 मरले ज़मीन भी कर्क करने का हुक्म दे दिया। अली अमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है? अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान है। ये किसी गलत फहमी में मत रहें। फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह नहीं देखती रहेगी। अली अमीन गंडापुर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? किसके इशारे पर कर रहे हैं? हमें सब मालूम है। फितना फसाद पार्टी पाकिस्तान में दोबारा 2014 वाले धरने का सिक्वल दोहराने की प्लानिंग कर रही है। इस्लामाबाद का जलसा और गंडापुर की अफगान सफारतकार से मुलाकात आइंदा माह कोई एडवेंचर करने की प्लानिंग है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। अमन अमान के मसले पर सब बैठकर मुश्तरका हिकमत अमली बनाएं। दूरियों को ख़त्म करना अदारों का काम है। अफरा तफरी से मुल्क की सालमियत को ख़तरा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान बदअमनी की लपेट में है। IPPs को नहीं पाल सकते, उनकी मुराद ख़त्म की जाए। सस्ती बिजली आवाम का हक है। मुफ्त पेट्रोल और मुफ्त बिजली बंद होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का रैली से खिताब।